بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 دسمبر ہے جو دنیا کے اندر کرسمس کے طور پر مشہور ہے، اور عیسائیت کرسچینٹی کے اکارڈنگ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ولادت کا دن ہے۔ اور قطع نظر اس سے کہ اس میں کتنی اتھینٹسٹی ہے، لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں عیسائیت کرسچینٹی کے لیے اور اسلام کے لیے، دونوں کے لیے کہ پیغمبر، ایک رسول، ایک نبی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے، ان کی والدہ پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہم اس کو اللہ کی جانب سے نازل کردہ سمجھتے ہیں، تو ایک متفقہ شخصیت ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ساری منفرد خصوصیات اور صفات کے حامل نبی ہیں۔ مثلاً آپ کی ولادت، آپ کی والدہ، آپ کی زندگی، پھر آپ کی زندگی کا جو ظاہری اختتام ہے، ایک مرحلے کا اختتام ہے، وہ جس طرح سے ہوا، پھر اس کے بعد کے معاملات بہت زیادہ منفرد ہیں، اور اس پہ صدیوں سے تحقیق ہوتی آ رہی ہے، ڈسکشنز ہوتی آ رہی ہیں، اور وہ یقیناً ہوتی رہیں گی، کیونکہ آپ کی شخصیت ہی کہ اس طرح کی شخصیت ہے جس میں بہت ساری عجیب و غریب، خوبصورت، رحمانی اور الہی جو چیزیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ لیکن ایک سوال جو ہمیشہ ہمارے ذہن میں آیا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی، ظلم کیا گیا آپ کے ساتھ، لیکن یہ کیوں کیا گیا، کس کی جانب سے کیا گیا، اس کے متعلق معلومات رکھنا تھوڑا سا ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ انبیاء کے ساتھ کون لوگ کیا سلوک کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں، ان کے ساتھ ان کی کوئی سیاسی روش نہیں تھی جب تک وہ اس دنیا میں رہے۔ سیاسی روش انہوں نے نہیں اپنائی، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، معجزات دکھا رہے تھے۔ وہ ایک غریب اور پسے ہوئے طبقے کو، ایک دھتکارے ہوئے طبقے کو اس پہ مرہم رکھ رہے تھے، اس کو شفا یاب کر رہے تھے، معجزات دکھا رہے تھے یا زندہ کر رہے تھے۔ اب جب ایک شخص یہ کام کر رہا ہے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس کے خلاف لوگ کیوں ہوئے، ایسا آخر کیا کیا کہ لوگ اس کے خلاف ہو گئے، اور بالآخر بات سزائے موت تک جا پہنچی، اور معاملات گرفتاری تک جا پہنچے، اور پھر بقول عیسائیت وہ 3 دن بعد جی اٹھے، یا بقول اسلام وہ آسمانوں کی جانب اٹھا لیے گئے۔ ایسا کیوں ہوا کہ نہ وہ سیاسی روش، نہ وہ کوئی لشکر بنا رہے تھے، نہ وہ کوئی فوج بنا رہے تھے، نہ وہ حکمرانوں کے خلاف جا رہے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں مختصراً آپ کو خلاصہ پیش کریں گے انجیل سے۔ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، جو ابھی موجودہ ہمارے ہاتھ میں انجیل ہے، جو کرسچنز کی جانب سے پبلش کی جا رہی ہے، اور اس سے ہم آپ کی خدمت میں شیئر کریں گے کہ آخر کیا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت یہودی اپنی جسے کہتے ہیں حکومت کھو بیٹھے تھے، اور پہلے وہاں پر وہ حاکم تھے، اب وہاں پر محکوم کی حالت میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہاں پر رومی حکومت تھی، اور ان کے حکمران یہاں پر حکمرانی کر رہے تھے۔ اس حکومت میں یہودیوں کو تھوڑی سی مذہبی آزادی بھی تھی، اور جو حکمران تھا وہ یہودیوں سے تھوڑی سی بنا کر بھی رکھتا تھا۔ اس دور کے اندر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعلیمات دے رہے تھے، تو وہاں پر جو یہودیوں کے 2 مذہبی فرقے تھے، ایک صدوقی اور ایک فریسی۔ صدوقی یہ وہ فرقہ تھا جو قیامت کا منکر تھا، اور فریسی یہ وہ تھے جو کٹر تھے، جنہیں ہم مذہبی کہتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، رسم و رواج کا خیال رکھتے تھے، لیکن سب ظاہری طور پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بنیادی جنگ تھی وہ اس طبقے کے خلاف تھی، جبکہ غریب طبقہ، پسا ہوا طبقہ، اس پر وہ مرہم رکھ رہے تھے، لیکن اس طبقے کے خلاف وہ قدم اٹھا رہے تھے۔ مثلاً وہ کیا کہتے ہیں، یہ متی کی انجیل، گاسپل آف میتھیو، اس کا چیپٹر نمبر 23 ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے، اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں،
बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। ये उस दौर के जो नाम नहाद मजहबी तबका था, ये उनकी सूरत हाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। यानी कि वो मजहबी काम आवाम से करवाते हैं, लेकिन खुद वो मजहबी काम नहीं करते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने ताबीज़ बड़े बनाते हैं और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं। ये आप देखिएगा कि आज भी ये हो रहा है या नहीं हो रहा। और ज़ियाफ़तों में, सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ, यानी कि आला दर्जे की कुर्सियों पर वो बैठना पसंद करते हैं और सदर मुकाम पर बैठना पसंद करते हैं। और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। यहूदियों के जो मजहबी आलिम हैं उन्हें वो रब्बी कहते थे। ये उस दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि इनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता था, ये जिसे कहते हैं कि एक माफिया थी मजहबियों की वहाँ पर, यहूदियों की, जो ये काम कर रही थी। अब इसके खिलाफ ईसा अलैहिस्सलाम ने क़याम किया। फिर वो क्या कहते हैं? कहते हैं, ए रियाकार, फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। ना खुद काम करते हो, ना खुद किसी को कामयाब होने देते हो, ना खुद कामयाब होते हो, ना किसी और को कामयाब होने देते हो। ए रियाकार, फकीह और फरीसी, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दुबा बैठते हो। यानी जो कमजोर तबका है उसके माल को दुबा लेते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम्हें सजा ज्यादा होगी। ये चैप्टर नंबर 23 में ईसा अलैहिस्सलाम इस माफिया के खिलाफ क़याम कर रहे हैं। आगे कहते हैं इसकी 70 नंबर आयत में, फिर ये कहते हैं कि ए अहमक और अंधो, ए अंधे राह बताने वाले, तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मुकद्दस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मुकद्दस के सोने की कसम खाए तो इसका पाबंद होगा। यानी कि मुकद्दस मुकाम जो हैकल है, कहते हैं अगर कोई उसकी कसम उठाता है तो वो कोई मानी नहीं रखती, लेकिन उसमें चूंकि सोना भी मौजूद था, एक मजहबी मुकाम था, सोने की कसम उठाए तो वो अहमियत रखता है। ये थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क़याम, यानी उस दौर के नाम नहाद मजहबी और जो ज़ाहिरी लिबास रखे हुए थे उनके खिलाफ। और हम जानते हैं कि जब भी कोई इस्लाह करना शुरू होता है तो सबसे पहले जो तबका उसके खिलाफ होता है वो हमेशा मजहबी तबका होता है। वो हमेशा उलमा के लिबास में लोग मौजूद होते हैं जो इस्लाह की मुखालफत करते हैं, क्योंकि उनके मफादात को चोट पहुँचती है, जिस तरह रसूल अल्लाह के साथ हुआ। और सब आज भी इसी तरह हो रहा है कि जो भी इस्लाह की बात करता है, आप देखिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा, सबसे संगीन और सख्त मुखालफत किस तबके की जानिब से होती है? नाम नहाद मजहबी तबके की तरफ से। यही वजह है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया गया और सरदार काहिन, जो यानी कि यहूदियों के यहाँ सबसे बड़ा ओहदे पर फाइज मजहबी शख्स, उसको काहिन, सरदार काहिन कहते थे, उसकी खिदमत में ले जाया गया। वहाँ से फिर पिलातुस की अदालत में ले गए। पिलातुस ये रोम की जानिब से यहाँ का हाकिम था और इसके पास इख्तियारात थे कि ये यहूदी अदालत का फैसला भी तब्दील कर सकता था, अगर किसी की सज़ा तब्दील करनी थी तो उसको भी तब्दील कर सकता था। अजीब और अहम बात ये कि ये पिलातुस ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सज़ा नहीं देना चाहता था, इसीलिए इसने एक कानून, एक रस्म बनाई हुई थी कि ईद के दिन ये यहूदियों से पूछता था कि बताओ, मैं तुम में से किसी एक कैदी को जो सज़ा याफ्ता होता था उसे कहता था मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। इसने यहूदियों को कहा अगर तुम चाहते हो तो मैं इसको, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर देता हूँ। ये पूरी इस चैप्टर नंबर 27 जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है उसमें मौजूद था। इसके चैप्टर नंबर 27 आयत 15 से स्टार्ट होता है। हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पहले तो उसने उससे कहा कि तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं। उसने उनसे पूछा कि आया मैं ईसा को छोड़ दूं या दूसरे कैदी को जो मुल्जिम, जो सजा याफ्ता था और जिसने गुनाह किया हुआ था उसको छोड़ दूं, क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने इसको हसद से पकड़वाया है। पहले तो हाकिम जानता था कि हसद से पकड़वा रही है, कि ये भी मुसीबत है मजहबियों के अंदर
हसद बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एक दूसरे की लेग पुलिंग, एक दूसरे के खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा करना। और जब वो तख्त अदालत पर बैठा तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू उस रास्तबाज से कुछ काम ना रख। उसकी बीवी ने भी उसे मना किया कि तू ईसा अलैहिस्सलाम के मामले से पीछे रह। तो हाकिम ने उनसे कहा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं। अब वो उसे पूछ रहा है। उन्होंने कहा कि उसको जो सजा याफ्ता था, जो मुजरिम था, उन्होंने कहा उसको छोड़ दे। पहले तो उसने उनसे कहा फिर यसू को जो मसीह कहलाता है क्या करूं। सब ने कहा कि वो मसलूब हो। उन्होंने वहां पे शोर मचाना शुरू कर दिया कि उसको मसलूब कर दे। हाकिम ने उससे पूछा, उसने कहा क्यों, उसने क्या बुराई की है। मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि वो मसलूब हो। फिर जब पहले तो उसने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ता बल्कि उल्टा बलवा हुआ जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। यानी कि जो मुजरिम था उन्होंने कहा कि इसको सजा दे दे, और जो बेगुनाह ईसा अलैहिस्सलाम है इसको उन्होंने कहा कि मसलूब कर दे। ये बड़ी आगे तल्ख तफसील है कि किस तरह से कोड़े मारे गए, किस तरह से मजाक उड़ाया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लिबास भी लोगों ने खींच लिया, छीन लिया, उतार लिया। तो बुनियादी तौर पर कौन लोग मुखालिफ थे? मजहबी, नाम नहाद मजहबी तबका। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए, जिस तरह से वो कमज़ोर तबके को साथ लेकर चल रहे हैं, दीन की हकीकी तस्वीर पेश कर रहे हैं और मजहबी लिबास वालों को बेनकाब कर रहे हैं। और यहाँ पर यह भी मिलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने वो जब देखा कि वो कारोबार कर रहे हैं हैकल के अंदर, तो उन्होंने उस पर भी मना किया उन्हें कि यहाँ पे कारोबार, यहाँ पे तुमने चोरों को रखा हुआ है। तो मजहबी तबका, नाम नहाद मजहबी तबका, ये बाइस बना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी के मुश्किलात का, कि जो सिर्फ मुझे दिखा रहे थे और कोई जिसे कहते हैं लश्कर कशी नहीं थे कर रहे, फौज नहीं थे बना रहे। तो नाची ये हमारे लिए भी बाइस इबरत है कि जब इस्लाह की आवाज़ बुलंद हो, जब इस्लाह के लिए कोई क़याम करे खुदाई शख्सियत, तो हम देखें कि आया हमने वही सलूक उसके साथ करना है जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, फिर रसूलुल्लाह के साथ भी हुआ, फिर रसूलुल्लाह के बाद भी जो आइमा कराम है उनके साथ हुआ, या हमने वो सलूक करना है कि जो शायान शान है, बात माननी है, पैरवी करनी है, इताअत करनी है और दीन की सही, इसे कहते हैं, रहनुमाई लेनी है उससे। और हमने इन नाम नहाद मजहबियों से, जिनने ज़ाहिर में मजहब को अपनाया हुआ है, जो मजहब के नाम पर लूट रहे हैं, कमा रहे हैं और हसद में मुब्तला हैं और इस्लाह करने वालों के खिलाफ प्रोपोगंडे कर रहे हैं, हमने उनके खिलाफ कि किस तरह से चलना है। आया उसी तरह से जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इन नाम नहाद फ़कीहों ने और फरीसियों ने किया, या मुख्तसिर जमात की तरह के जो हमेशा इन खुदाई शख्सियात के साथ होकर इस्लाह की राह पर चलते हैं। अल्लाह ताला का लाखों सलाम हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, उनकी वालदा पर, और सब लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर मुबारकबाद भी अर्ज़ है। सदाक़त।